Hello student, I am Deepak Saini, physics faculty, and today our topic of discussion is electrostatics. In electrostatics, we are going to discuss first we have divided the electrostatics in four parts. First, electrostatic second, electrostatic 2, electrostatic 3 and electrostatic 4. In the first part, we will discuss first of all the electrostatic first. What is the electrostatic first? In which we will discuss the electrostatic force, basically the point which are going to discuss in this chapter or in this section is first the fractional electricity, then properties of electric charge, then we will discuss Coulomb law, then we will discuss Coulomb's law in vector form and unit of charges. Then 6 is relative permittivity or dielectric constant. 7th is continuous charge distribution and linear charge density, in which we will discuss linear charge density, surface charge density and volume charge density. So these are the topics we are going to discuss in this section. So first of all, what is the electrostatics? This is the first chapter of your class 12 and it is very important for the point of view of your board examination as well as the preparation of your NEET and JEE mains examination. The most important thing about this chapter is that in the JEE mains and the NEET examination, many questions asked from this chapter. So it becomes very important to learn about this chapter too carefully. Clear hai? Okay, so let us start with the fractional electricity. Before going to the fractional electricity, let us discuss what is the electrostatics. What is the electrostatics? Let us discuss what is the electrostatics. Electrostatics mean we will discuss the charge, the property of the charge or the property of the charge which is at rest. Electro plus statics. Electrostatics mean we will discuss the property of charge which is at rest. This thing should be keep in your mind. If the charge is moving, the things will not covered in this chapter. That things or that phenomena comes under the electromagnetic wave theory. Okay, so in this chapter only we will consider the charges at rest. Clear hai? So let us start with fractional electricity. What is the fractional electricity? This is the first slide of our discussion in which we will discuss frictional electricity. In the frictional electricity, जैसा कि इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन. व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन? सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सम एग्जांपल्स. यदि आप एक डार्क रूम में, अंधेरे रूम में जिसमें उजाला ना हो जाते हैं और उसमें एक ग्लास रोड और एक वुलन क्लॉथ को लेकर के एक दूसरे को रब करते हैं, यानी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली भी आप उस बॉडी में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी. यानी कि यदि आप दोनों बॉडीज़ को, ग्लास रोड और वुलन क्लॉथ को आप या सिल्क के क्लॉथ को भी आप रब करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें आपको एक स्पार्किंग सी प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है. दैट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिसिटी एंड इट produced due to the rubbing of the two material and it therefore it is called the frictional electricity. क्लियर है क्या बात? ऐसे ही आपको और एग्जाम्पल आपको देखने के लिए एक्सपेरिमेंटली भी मिल जाएगा जिसमें आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा सकते हो. कौन सा एग्जाम्पल सब आपको देखते हैं कि यदि आप अंधेरे वाले रूम में, डार्क रूम में अपने ड्राई हेयर को और उसके अंदर कॉम करते हो, कंघे से यदि आप अपने बाल को हेयर को कॉम करते हो, तो ये देखोगे कि आपको उसमें स्पार्किंग सी प्रोड्यूस होती हुई दिखाई भी देगी. ऐसा भी पाया जाता है नॉर्मली, तो इसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बोलते हैं. ठीक है, तो मैनी एग्जांपल्स आर देयर विच कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इसे थियोरेटिकली आप समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एग्जाम्पल क्या है आप देखिए, बोर्ड पे देखिए कि यदि आप, दिस इज़ ए ग्लास रोड, ये एक ग्लास रोड है और एक ये पिंक कलर का एक सिल्क का कपड़ा है.
है ना। यदि आप एक सिल्क के कपड़े को और एक ग्लास के रोड को रब करते हो तो उसमें फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि उसमें स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। दूसरा है एक एग्जांपल फ्लैनल, एक फ्लैनल नाम का एक कपड़ा है और एक इबोनाइट की रोड है। इबोनाइट एक टाइप का मटेरियल होता है जो कि आपको मटेरियल मार्केट में मिल जाता है। दूसरा एक फ्लैनल है, फ्लैनल या आप फर भी बोल सकते हैं, है ना। फ्लैनल वैसे तो डिफरेंट टाइप का एक मटेरियल ही होता है, लेकिन आप इसे फर के टाइप से भी आप समझ सकते हो। फर का मतलब होता है जो कपड़ा या जो फैब्रिक बिल्ली या अदर जो एनिमल्स होते हैं उनकी खाल से मिलकर के, उनके बालों से मिलकर के बना होता है, उसे फ्लैनल या फर का नाम भी आप दे सकते हो। क्लियर है क्या बात। जैसा कि आपको इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि सिल्क के कपड़े से जब आप ग्लास के रोड से प्रोड्यूस करोगे या फ्लैनल के कपड़े से एक इबोनाइट के रोड को आप रब करोगे तो आपको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है ना। स्पार्किंग टाइप की प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी डार्क रूम के अंदर, इसी, है ना। तो अब हम इसका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का हम रीज़न समझ लेते हैं कि ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों होती है बेटा। क्लियर है क्या बात। तो इसका प्रोड्यूस होने का कारण हम बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पे समझ सकते हैं। प्रत्येक एटम, एवरी एटम इन द वर्ल्ड इज मेड ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड इट। यदि आप किसी भी एक दो मटेरियल को कंसीडर करते हो तो मटेरियल 1 मान लेते हैं, मटेरियल 1 है, मान लेते हैं मटेरियल 2 है। मटेरियल 1 भी एक एटम से मिलकर के बना होता है और मटेरियल 2 भी एक एटम से मिलकर के बना होता है ना। एक एटम के अंदर यदि आप एटम को कंसीडर करते हो तो एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। क्लियर है क्या बात। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। यदि आप दो मटेरियल 1 और मटेरियल 2 को आपस में रब करते हो तो क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, एनर्जी इज ऑब्टेन बाय द एटम्स, एनर्जी एटम्स को मिल जाती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एटम को मिल जाती है और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो जाती है। एटम तो फिक्स होता है, एटम का न्यूक्लियस भी फिक्स होता है और एटम भी फिक्स होता है, लेकिन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जो है एटम से डिटैच होकर के जा सकते हैं। इसलिए जब फ्रिक्शनल दो बॉडीज़ को, यदि आप जैसे पेन है और इसमें एक कपड़ा ले लें, यदि आप इस कपड़े को रगड़ेंगे तो इसके एटम और इसके दोनों के एटम को एनर्जी मिलेगी और एटम की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होगी और इलेक्ट्रॉन एटम से डिटैच हो सकते हैं। क्लियर है क्या बात। तो एटम डिटैच होकर के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा नहीं है डिटैच होकर के हवा में चले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम से इलेक्ट्रॉन डिटैच होकर के हवा में कभी भी नहीं जा सकता। वो केवल एटम से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पर ही जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम तक ही जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से टूट करके दूसरे मटेरियल पर चला जाता है। क्लियर है क्या बात। अब जैसे कि मान लेते हैं हम ये जिस एग्जांपल में दिखाया है ग्लास है और ये सिल्क है, मान लेते हैं मटेरियल है ये, इस मटेरियल को हम ग्लास मान लेते हैं बेटा और दूसरे मटेरियल को हम सिल्क मान लेते हैं। क्लियर है क्या बात। तो ग्लास के जब सिल्क और ग्लास के मटेरियल को आपस में रब किया जाता है तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चले जाते हैं बेटा, सिल्क में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाते हैं और सिल्क पर आ जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन सिल्क जो मटेरियल 2 है इस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है और ग्लास जो मटेरियल 1 है इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है। क्लियर है क्या बात। क्योंकि मटेरियल 1 पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है, इसके कारण ये मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और क्योंकि मटेरियल 2 पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है तो इस वजह से मटेरियल 2 क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ना। इसी तरीके से आपको इसमें दिखाया हुआ है कि जब ग्लास जो है, ग्लास तो कैसा हो जाता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ग्लास बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम नेगेटिवली चार्ज। इस ग्लास पर, इस सिल्क के क्लॉथ पर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, यानी कि ग्लास के एटम से इलेक्ट्रॉन
टूट करके सिल्क के कपड़े पर आ जाते हैं, सिल्क के क्लॉथ पर आ जाते हैं, है ना, और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्लियर है क्या बात? जबकि यदि आप दूसरा एक एग्जांपल लेते हो इबोनाइट और फर का, है ना, इबोनाइट या फर का, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि जो फ्लैनल है, फ्लैनल का जो फैब्रिक है उसमें से इलेक्ट्रॉन टूट करके इबोनाइट रोड पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्लियर है क्या बात? कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं बेटा? इबोनाइट रोड पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्लियर है क्या बात? है ना? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इबोनाइट रोड पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है और फ्लैनल क्लोथ्स पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसलिए ये जो फ्लैनल है इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसा हो जाता है बेटा? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और ये रोड कैसी होती है बेटा? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्लियर है क्या बात? इसका मतलब ये है कि जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को या किन्हीं दो मटेरियल को आप एक दूसरे से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए रब करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चले जाएंगे। जिस मटेरियल पर जाएंगे उस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी और जिस मटेरियल से वो आएंगे उस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। जिस मटेरियल पे जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है ना, एक्सेस हो गया है इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जिस मटेरियल से वो आया है उस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? आप अपनी थ्योरी में आप इस डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट the definition of the frictional electricity and you have to give some good examples like silk and glass and flannel and ebonite rod। आपको as it is ये डायग्राम आपके कॉपी में बना लेना है, आपको अपनी एग्जाम की कॉपी में लिख देना है। क्लियर है क्या बात? तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू सुटेबल बॉडीज एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। क्लियर है क्या बात? सुटेबल बॉडी का मतलब है सुटेबल बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन टूट सके, इलेक्ट्रॉन आ सके। ऐसी बॉडी नहीं कि जैसे वाटर है, मटेरियल है या कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो ही ना सके। क्लियर है क्या बात? जैसे कि मान लेते हैं आप एक सैंड ले लेते हो, मटेरियल सैंड भी हो सकता है या ऑयल ले सकते हो, तो ऐसा नहीं। सुटेबल बॉडीज मीन विच आर डिस्क्राइबिंग इन दिस चैप्टर, दीज आर द सुटेबल बॉडीज। फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाट? सिल्क और ग्लास के कपड़े को, सिल्क के कपड़े को और ग्लास की रोड को हम सुटेबल बॉडी मानेंगे, है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम इबोनाइट और फ्लैनल को लेंगे। क्लियर है क्या बात? इसके बाद व्हाट इज रिटन, व्हाट यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन कॉपी? Electrons in glass are loosely bound in it than the electron in silk, isn't it? So when glass and silk rod are rubbed together, the comparatively loosely bound electrons, जो loosely bound electron होते हैं, they are transferred from glass to silk. Clear है क्या बात? As a result, glass become positively charged and silk become negatively charged. क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से दिस इज ऑल्सो गिवन इलेक्ट्रॉन इन फर मीन फनल, है ना, फ्लैनल, दिस इज द फ्लैनल, दिस इज फर और यू कैन से दिस इज फ्लैनल। व्हाट इज फ्लैनल? फ्लैनल इज ए फैब्रिक विच इज सेम एज फर, आर लूजली बाउंड in it than the electron in ebonite. So when ebonite and fur are rubbed together, the comparatively loosely bound electron, जो loosely bound electron होते हैं, they are get transferred from ebonite, they are get transferred from fur to ebonite में पहुंच जाते हैं। As a result, ebonite become negatively charged and fur become positively charged. Clear है क्या बात? So this is the thing which we have discussed to understand the frictional electricity by taking some example. क्लियर है? अब आपके दिमाग में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन, इस केस में तो आपने कह दिया, इस केस में आपने कह दिया कि ग्लास रोड से
सिल्क में चले जाएंगे। और इस एग्जाम्पल में आपने कह दिया कि फ्लैनल से इबोनाइट की रोड में चले जाएंगे, है ना। तो देखिए ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी मटेरियल की है, ये प्रॉपर्टी मटेरियल की है और आपको इसे याद ही करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बता देता हूँ, मान लेते हैं ये इस पेन को एक इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं और इसको आपकी क्लास में दो स्टूडेंट को दे देते हैं। एक स्टूडेंट जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट दो वीक स्टूडेंट के बीच में दे देते हैं। यदि आपसे कहा जाए, दो स्टूडेंट से कहा जाए कि इसे खींचो और कौन इलेक्ट्रॉन अपने पास को ले जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग वाला स्टूडेंट है वो इस इलेक्ट्रॉन को, पेन को जिसे हमने समझा वो अपने पास ले जाएगा। क्लियर है क्या बात। यदि इस पेन को ये स्ट्रॉन्ग है और उस तीसरा स्टूडेंट उससे भी ज़्यादा हमने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के हाथ में दे दिया, तो यदि ये वाला स्टूडेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये पेन अपने हाथ में ले जाएगा। इसका मतलब पेन का जाना किस पे डिपेंड करेगा, पेन का जाना डिपेंड करेगा कि जो स्टूडेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अपने साथ पेन को ले जाएगा। इसी तरीके से सेम हमने इसमें भी हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। वो कंक्लूज़न क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर जाएगा जहां पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, जो मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें से, या आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ सकता। क्लियर है क्या बात। अगर जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर के दूसरे मटेरियल में पहुंच जाएगा, है ना। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन किस मटेरियल से किस सिस्टम में किस मटेरियल से किस दूसरे मटेरियल में जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो नहीं छोड़ेगा, जो वीक होगा उसे छोड़ना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर। अब कुछ मटेरियल हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं जिसे आप याद कर सकते हो, और उन मटेरियल्स के नाम क्या क्या हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्लियर है क्या बात। तो है ना, तो वो जो मटेरियल हैं जो आपको याद भी करने हैं और आपको पता भी होना चाहिए, जैसे कि फर, ग्लास, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, वुड, सीलिंग वैक्स, अंबर, रेसिन, सल्फर, रबर एंड इबोनाइट। इनके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपकी बुकलेट में या एनसीईआरटी या अदर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेनली यही आपके मटेरियल होते हैं, तो आपको इनको ही याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये एक लिस्ट बनाई गई है ना। लिस्ट बना करके कैसे लिखा गया है, जैसे फर और ग्लास और सिल्क है, तो जो लास्ट में इस लिस्ट के अंदर या इस टेबल के अंदर, जो इस लिस्ट के अंदर जो लास्ट में सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड है, और जो पहले आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन लेस स्ट्रांगली बाउंड है। क्लियर है क्या बात, वीकली बाउंड आप कह सकते हैं। क्लियर है क्या बात। तो यदि हम फर और ग्लास की रोड और फर के मटेरियल को ले, तो जो फर में है, फर में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होगा और ग्लास में वो जो होगा वो टाइटली बाउंड होगा। क्लियर है क्या बात। इसका मतलब यदि आप ग्लास को लेते हैं और फर को लेते हैं और एक दूसरे को रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है फर से ग्लास में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आप ग्लास में सिल्क और ग्लास का कपड़ा लेते हैं, तो ग्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड है और स्ट्रांगली बाउंड है सिल्क के अंदर, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में चला जाएगा। इसका मतलब ये कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने ग्लास और फर लिया हुआ है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है ना, यदि आप इस चीज़ को कंसीडर करते हो, तो जब यदि फर मटेरियल है और एक ग्लास रोड का मटेरियल है, यदि आप फर और ग्लास को एक दूसरे से रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास में चला जाएगा, और फर तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है। और ग्लास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। यदि आप फर को लेते हैं, दिस इज़ फर और दिस इज़ ग्लास, तो आप क्या पाएंगे कि जो ग्लास है, दिस इज़ ग्लास, फर तो हो जाएगा बेटा नेगेटिवली चार्ज, फर तो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इस पे से इलेक्ट्रॉन चला गया है। क्लियर है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गया है और जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन गया है ग्लास पे हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। इसी तरीके से यदि आप सिल्क और ग्लास को कंसीडर करते हो, है ना, सिल्क और ग्लास को कंसीडर करते हो, तो सिल्क बाद में आता है, ग्लास पहले आ जाता है। तो जो सिल्क है
उस पर स्ट्रांगली टाइटली बाउंड है इलेक्ट्रॉन, और ग्लास पे इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू सिल्क लेस टाइटली बाउंड है। क्लियर है क्या बात? तो इलेक्ट्रॉन जो आ जाएगा वो सिल्क पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यदि आप एक ग्लास मटेरियल लेते हो, यदि आप एक ग्लास रोड लेते हो, सपोज दिस इज ए ग्लास रोड, क्लियर है क्या बात, और ये है आपका सिल्क का क्लॉथ, ये आपका हम बना देते हैं सिल्क का क्लॉथ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से किधर की ओर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ग्लास से सिल्क की ओर मूव कर जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सिल्क में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और ये ग्लास तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से फर और ग्लास के हम एग्जांपल में देखें तो ग्लास तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और फर क्या होगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होना और नेगेटिवली चार्ज होना किस पे डिपेंड करता है, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और आपको इसे याद करना पड़ेगा कि फर में कम मजबूत यानी कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड होते हैं, और ग्लास में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फर। और सिल्क की बात करें और ग्लास की बात करें तो सिल्क में ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, और ग्लास में कंपैरेटिवली लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? तो ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाउंडनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रखा है। यदि आपको फर और इबोनाइट में हम कंसीडर करें तो, या ऊपर के जितने भी मटेरियल हैं, तो इन सब में इबोनाइट रोड का जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड होगा एज कंपेयर टू द अदर मटेरियल गिवन इन दिस लिस्ट। जैसे कि ह्यूमन बॉडी और कॉटन और वुड से भी ज़्यादा इबोनाइट के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हैं। यदि आप कॉटन और इबोनाइट को लेते हो, देखो मैं एक एग्जांपल और आपको बता देता हूँ। यदि आप कॉटन और इबोनाइट को लेते हो तो इबोनाइट क्या आता है, बाद में आता है, कॉटन इस लिस्ट में पहले आ जाता है। तो कॉटन में एज कंपेयर टू इबोनाइट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे और इबोनाइट के इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब दोनों कॉटन और इबोनाइट को आप रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन कॉटन से इबोनाइट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और इबोनाइट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और कॉटन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हम रेजिन एक मटेरियल होता है, रेजिन एक मटेरियल होता है, इसे लें, और एक वुड को हम यदि मटेरियल लें, यदि वुड और रेजन को एक दूसरे में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन वुड से रेजन में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि रेजिन इस लिस्ट में बाद में आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे, जबकि वुड इसमें पहले आ जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन लूजली टाइट बाउंड होंगे, है ना, लूजली बाउंड होंगे। तो इलेक्ट्रॉन वुड से रेजिन की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे, रेजिन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और वुड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इस लिस्ट को आप डिफरेंट तरीके से याद रख सकते हो, है ना, इस एज इट इज़ याद कर सकते हो, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि कौन सी मटेरियल का इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, यानी कि जिसमें नेगेटिवली चार्ज आएगा। तो इबोनाइट सबसे बाद में आता है ना। सबसे पहले फर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर, ग्लास, सिल्क, कॉटन, है ना, अंबर, रेजिन एंड इबोनाइट, ये आपको बेसिकली पूछे जाते हैं। इबोनाइट और सिल्क का एग्जांपल दिया हुआ है, सॉरी, ग्लास और सिल्क का एग्जांपल हमने ऊपर लिया हुआ है। इबोनाइट और फर का एग्जांपल भी हमने ऊपर लिया हुआ है ना। जैसे इसमें लिया हुआ है, इसमें एग्जांपल में क्या लिया हुआ है, फ्लैनल है, यानी इसे हम फर ही बोलते हैं बेटा। और इबोनाइट तो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इबोनाइट तो हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही जाएगा। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से ग्लास रोड को यदि हम सिल्क को कंसीडर करें तो ग्लास तो पहले आ जाता है इस लिस्ट में, है ना, इस लिस्ट में बेटा ग्लास पहले आ जाता है और सिल्क बाद में आता है। इस प्रकार से आप ग्लास और सिल्क को रगड़ करके हमने जब देखा था तो ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में चला गया था, और सिल्क टाइटली बाउंड होता है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्लियर है क्या बात? लेकिन ऐसा नहीं है कि इबोनाइट ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कुछ एग्जाम्पल हैं जो कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिए हुए हैं, आपको इसे एज इट इज़ याद कर लेना है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जेई मेंस में तो आज तक या नीट में तो कभी नहीं पूछे गए, लेकिन जेई मेंस में हमेशा पूछे जा सकते हैं, सॉरी 12th बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। जैसे ग्लास और सिल्क में कौन सा ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होगा बेटा? सिल्क बाद में आता है, और देख लीजिए आप, सिल्क बाद में आता है और ग्लास पहले आ जाता है, जबकि
जबकि वुल और फ्लैनल, फ्लैनल मतलब फर, ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे और इबोनाइट, अंबर, रेजिन, प्लास्टिक, प्लास्टिक इसमें नहीं दिया हुआ है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज होंगे। इसी तरीके से इबोनाइट और पॉलीथीन को हम कंसीडर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इबोनाइट पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि इबोनाइट के बाद में यहाँ पर पॉलीथीन ही आएगा, पॉलीथीन भी आ सकता है। इसका मतलब पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू द इबोनाइट। यदि आप ड्राई हेयर और कॉम को कंसीडर करें, यानी प्लास्टिक को और अपने हेयर को कंसीडर करें, हेयर को आप फर से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है हेयर की वो फर, यानी कि जानवर जो एनिमल्स, कैट या अदर एनिमल्स हैं, उनके फर के इक्विवेलेंट ही आप मान सकते हो। और कॉम जो है, कॉम को प्लास्टिक मान सकते हो, तो प्लास्टिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, हमारे हेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारे हेयर से इस कॉम्ब में चले जाएंगे, तो कॉम्ब क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकते हो। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किस वजह से होता है? फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू द रबिंग ऑफ द टू मटेरियल, है ना, इलेक्ट्रॉन का एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाने से। थैंक यू।